So greeting students. In this module, we will discuss about the first topic of this chapter, the laws of chemical combination. So we have already discussed the introduction part, what are atoms, what are molecules, and what are the different symbols, how we can simply define atoms and molecules. So in this module, we will discuss the first topic of this chapter, laws of chemical combination, कि how different compounds combine with each other, कि compounds जो हैं वो combine कैसे करते हैं या elements combine करते हैं, तो वो मतलब कैसे करते हैं, कौन कौन से rules को वो follow करते हैं. So in this module we will discuss the first law of chemical combination, which is law of conservation of mass. There are two laws of chemical combination that we have to discuss. First is law of conservation of mass and the second one is law of definite proportions. कि रेशो जो होता है एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं वो रेशो क्या रहता है, फिक्स रहता है. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So this law was given by Antonio Lavoisier in the year 1774. So what is this law? What is this law of conservation of mass? So during the physics part we discussed what is the law of conservation of momentum, कि momentum को ना तो बना सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. The similar, what is this? Conservation of mass. So mass can neither be created nor be destroyed. कि मतलब मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसमें? केमिकल चेंज के दौरान. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सेकेंड, और यू कैन सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बट द बेटर डेफिनेशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग केमिकल, we are discussing chemistry portion. So chemistry topic, what is chemistry or chemical reaction? A chemical change is taking place. So in a chemical change there are two parts. First is reactant, second is product. Means कि कोई भी chemical change होता है या कोई भी chemical reaction होती है. For example, burning of coal. So coal in presence of oxygen gas react together to produce carbon dioxide plus heat and light. So heat and light are the form of energy that we generally don't consider matter. So this is the simplest example, burning of coal. कि कोल जो है उसको हम बर्न करते हैं. बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस. So coal plus oxygen, if we want to write in the equation form, symbol of coal is carbon, react with the oxygen to carbon dioxide. This is the simplest representation of chemical reaction or chemical change. तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम जनरली क्या बुला देते हैं? रिएक्टेंट. और जो एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं उनको हम क्या बुला देते हैं? प्रोडक्ट. दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजिली इफ द केमिकल चेंज इज गिवन इन द रिएक्शन फॉर्म. या तो आप आसानी से पता लगा सकते हो जब रिएक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, आइदर इन द इक्वेशन फॉर्म. तो एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट, एरो के राइट में प्रोडक्ट. बट इफ इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट फॉर्म, कि पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा होगा, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट विच आर रिएक्टेंट एंड विच आर प्रोडक्ट? सो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. उसमें लिखा होगा कि दिस compound or substance is reacting with the other substance and it result into the formation of particular substance. So इस तरह से statement given होगी. We will also discuss few of the numericals, then it will be clear. So reactants combine करते हैं एक दूसरे के साथ कि कोई भी chemical change है जो starting material होता है, that is specifically called reactant. और chemical change होने के बाद जो नई चीज बनती है, that is called product. So this is the simplest difference. The substance which are participating in a chemical change or chemical reactions are called reactant, or the substance which is formed after, or the new substance which is formed after the chemical change. कि जो substance chemical change होने के बाद जो नई चीज बनी है उसको हम क्या बुलाते हैं? Product. So I hope the meaning of terms reactant and product is clear to everyone. Now we will move to the second definition. What is law of conservation of mass? In a chemical reaction, the total mass of reactant is equal to the total mass of
प्रोडक्ट, कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो आपने शुरू में रिएक्टेंट लिए थे उनका अगर आप टोटल मास कर लेते हो वो सेम रहने वाला है केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके अंदर जो उनका अगर आप टोटल मास करोगे. सो हाउ वी कैन वेरीफाई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? So in your NCERT book you will find the activity 3.1. So read that activity 3.1. Under this activity two substances are given, X and Y. Under the X you will find copper sulfate, barium chloride, lead nitrate. In front of it sodium carbonate, sodium sulfate or sodium chloride. Means they are the reactants. First set of reactant एक्स और वाई. फर्स्ट रिएक्शन के अंदर कौन है? कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट. सेकंड में कौन है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. इन द थर्ड वन लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स. सो नाउ यू कैन राइट दिस पोर्शन कि बर्निंग ऑफ कोल, व्हाट इज दिस रिएक्शन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट. Next is how we can verify this law of conservation of mass. कि हम verify कैसे करेंगे law of conservation of mass को? So for this we have to perform a chemical change. We have to start a chemical reaction. Reaction करवा के देखनी पड़ेगी, उसके बिना हम नहीं बता सकते. तो उसके अंदर generally हम क्या करते हैं? We prepare the 5% solution of X and Y. हम क्या करते हैं? हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, अच्छे से डिसोल्व करते हैं. 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, पानी में डालते हैं, अच्छे से डिसोल्व करते हैं. यू विल बी हैविंग, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 क्लियर सोल्यूशन आ जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज 5% सोल्यूशन बनाते हैं हम X का और 5% सोल्यूशन बनाते हैं हम Y का. तो उसके बाद हम क्या करते हैं? वी टेक ए कॉनिकल फ्लास्क. कॉनिकल फ्लास्क के साथ साथ हम क्या करते हैं? एक इग्निशन ट्यूब होती है सिमिलर टू दैट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसको हम क्या करते हैं? एक थ्रेड के साथ क्या करते हैं? टाई करते हैं. और वो थ्रेड क्या होता है? बाहर की तरफ. और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? फोक से क्या कर देते हैं? इसको बंद कर देते हैं. यू कैन ऑल्सो सी दिस इन योर बुक, इसको किस तरह से एक थ्रेड से टाई करके अंदर की तरफ सेटअप किया होता है. तो ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया आपका, ये कॉर्क हो गई, और ये हमारी क्या होगी? इग्निशन ट्यूब. हम क्या करते हैं? नीचे क्या ले लेते हैं? X का सोल्यूशन, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? Y का सोल्यूशन. मीन्स इफ वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल, लेट अज्यूम कॉपर सल्फेट. सो हाउ वी कैन राइट? कॉपर सल्फेट हमने किस में लिया है? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. और ये जो हमने इग्निशन ट्यूब ली है उसको इस तरह से सेटअप करते हैं कि अंदर गिरे ना ये. ठीक है. तो स्टार्टिंग में हम इग्निशन ट्यूब के अंदर किसका सोल्यूशन डाल देते हैं? Y का. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज सोडियम कार्बोनेट. कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट कि फ्लास्क के अंदर हमने क्या फिल किया है? कॉपर सल्फेट. और इग्निशन ट्यूब के अंदर क्या फिल किया हमने? सोडियम कार्बोनेट. बी केयरफुल, देयर एक्वस सोल्यूशन. पानी में जो सोल्यूशन बनाए थे हमने 5% वो हमने इसके अंदर फिल किए. फिर हम क्या करते हैं? इस पूरे सेटअप को, जब तक हमने इसको मिक्स नहीं किया, इस पूरे सेटअप को हम वे कर लेते हैं. लेट अज्यूम फर्स्ट इज बिफोर मिक्सिंग. लेट अज्यूम द वेट इज आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सिंपली हम वे कर सकते हैं. इस पूरे सेटअप को हम एक वेइंग मशीन पे रख देंगे, हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है. X और Y के हैं, दोनों सेपरेटेड हैं. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन दोनों मिक्स नहीं किए हैं, कोई हमने केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई. हमने क्या किया? इस पूरे सेटअप को वेइंग कर ली. लेट अस अज्यूम इट इज 300 ग्राम. उसके बाद हम क्या करते हैं? इस थ्रेड को पुल करते हैं. पुल करने से क्या हो जाता है? ये जो हमारी इग्निशन ट्यूब है, इट विल फोल्ड अंडर दिस फ्लास्क. वो गिर जाती है. गिरने से क्या होगा? ये जो सोल्यूशन Y और X हैं दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे एंड देयर विल बी ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. इफ वी वांट राइट
आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, और क्या बन जाएगा आपका कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। तो कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। सो जब तक हमने इस इनिशियल ट्यूब को नीचे नहीं गिराया था तब तक वो क्या थे, स्टार्टिंग सब्सटेंसेस की कोई भी केमिकल चेंज कराने के लिए हमने शुरू में क्या लिया है, शुरू में जो चीज लेते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट। तो अवर रिएक्टेंट्स आर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जैसे ही हम इस थ्रेड को पुल करेंगे और ये जो हमारी इग्निशन ट्यूब है वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कोनिकल फ्लास्क लेना, आप कुछ और भी ले सकते हो। लेट अज्यूम दिस बीकर, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया आपका कॉपर सल्फेट लिक्विड सोल्यूशन। इधर मैंने इग्निशन ट्यूब लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, और उसको मैं इस तरह से सेटअप कर देता हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, फिर मैं इसको कवर कर देता हूँ इसके लिड से, एंड देन आई विल वे। लेट अज्यूम द वे इज 300 ग्राम। फिर मैं क्या करता हूँ, या तो थ्रेड वाले से करता हूँ या फिर मैं इस तरह से जोर से इसको मिक्स करूंगा, तो अंदर जो ट्यूब है वो और दोनों सोल्यूशन जो है कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सेकेंड स्टेप करने के बाद जब मिक्स हो जाएगा तो देन यू विल सी सोल्यूशन विल बी क्लियर। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों क्या होते हैं, क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं बिल्कुल। ठीक है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर एंड सोडियम कार्बोनेट इज क्लियर सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है। दोनों आपको क्लियरली दिखाई देंगे, बट एज सून एज यू मिक्स देम तो देयर विल बी ए केमिकल चेंज। तो किस तरह का केमिकल चेंज होगा, यू विल सी दी द सोल्यूशन। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो है वो क्लियर नहीं रहेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। कि दोनों की केमिकल रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट में केमिकल चेंज हुआ, जो नया प्रोडक्ट बना वो वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं था तो वो बाहर आ जाता है, दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। सो व्हाट वाज द वेट बिफोर द रिएक्शन, कितना था हमने पहले वे किया था मिक्सिंग करने से पहले, 300 ग्राम। तो व्हेन यू आर सेटिस्फाई कि दोनों की केमिकल रिएक्शन हो गई है, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट आ गया, सॉलिड्स बन गए हैं, then you can again weigh the mixture। और जो भी आपका बीकर और ये पूरी असेंबली है, जो भी असेंबली आप apparatus यूज कर रहे हो, you will find it will be same। So this is the practical verification by performing a chemical change and chemical reaction that mass can neither be created nor be destroyed। कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने से पहले जो रिएक्टेंट का वे था और जो रिएक्शन होने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट बने उनका जो वे है दैट इज सेम। मीन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। की अगर मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता तो मतलब क्या है, मैटर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। मैटर किस चीज का बना हुआ है, एटम का, या तो एटम बने हैं या डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो in a chemical reaction the total mass of reactant is equal to total mass of product। so you can, if the exam is with the help of in exam question is there what is law of conservation of mass, then you have to write any of these two definitions, better one is the second one, and verify by using an experiment or example। then you can write either these example, you can write the chemical reaction either in this form, in the word form if you don't know the symbol form, or you can directly write in the chemical symbol form। if I have to write, first is the copper sulfate plus sodium carbonate, so I am writing here what is first, copper sulfate CuSO4, in bracket I will write AQ। the meaning of AQ is aqueous, मतलब पानी में हमने डिसोल्व किया। सेकेंड इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 aqueous। why I am writing aqueous, because I am forming the 5% solution। तो दोनों को रिएक्ट करेंगे तो जनरली तो हम क्या करते हैं, आगे करके लिखते हैं, बट आई डोंट हैव स्पेस, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग डाउनवर्ड। so when copper sulfate react with the sodium carbonate it will form copper carbonate plus sodium
सल्फेट. सो सोडियम सल्फेट विच इज फॉर्म, वो सोलुबल होता है वाटर में तो दिखाई नहीं देगा. जो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बने थे वो किसके बने थे? कॉपर कार्बोनेट. अगर आपको नहीं लिखी जा रही देन यू कैन राइट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ यू कैन राइट in this word form कि copper sulfate plus sodium carbonate will form copper carbonate plus sodium sulfate. So you can use any of these X and Y. So I hope this reaction is clear to everyone. At the end of this chapter you will be able to write the chemical formula. So chemical formula जब एक बार लिखने आएंगे then you will be able to write in the form of chemical reaction. If you don't know, if you are not sure about the chemical formula, don't write in this form. You can write in the word form. Clear? So that's how we can verify the law of conservation of mass. Means total mass before the total mass of the reactant or total mass before the chemical change is equal to total mass after the chemical change. Means total mass of reactant is equal to total mass of product. If you want to write the second and third reaction, first take this screenshot, then I will erase this and write this. So I hope this reaction is clear to everyone. So first reaction we have already discussed, the reaction between copper sulfate and sodium carbonate. Second I will write barium chloride plus sodium sulfate. बेरियम क्लोराइड. सेम आपको क्या करना है, दोनों के पानी में सोल्यूशन बनाने. बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. सॉरी नीचे ही मैं रिएक्शन भी लिख रहा हूं. BaCl2 इज बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4. आई एम राइटिंग AQ मीन्स एक्वस क्योंकि वो पानी में सोलुबल होते हैं. दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. तो आई एम राइटिंग द नेम्स बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट जो होता है इनसोलुबल होता है. तो ये जो डाउनवर्ड एरो में यूज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट बन गए हैं. और सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है पानी में सोलुबल होता है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग AQ. सो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. So this is the second example. Third example is lead nitrate plus sodium chloride. So formula for lead nitrate is PbNO3 to again पानी में सोल्यूशन बनाना है प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl पानी में सोल्यूशन बनाओगे और दोनों मिलके क्या बना लेंगे? PbCl2 प्लस NaNO2. So I have already explained what is the meaning of downward arrow. लेकिन इसको मत आप assume कर लेना कि ये precipitate है. This is the meaning reactant प्रोडक्ट. मेरे पास आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ. ये वाला एरो यही वाला है. तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर टू एवरीवन कि सेम मेथड हम फॉलो करेंगे जो भी हमने फर्स्ट इसमें किया था कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट. मिक्स करने से पहले हम वेइंग करेंगे और मिक्स करने के बाद वेइंग करेंगे और वेट मास जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा. सो आई होप दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ आई विल कंक्लूड व्हाट इज दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की केमिकल जब कंबाइन करेंगे तो कौन से रूल्स फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय द एंटोनियो लेवोसियर इन द ईयर 1774. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन. और इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. की टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो किस चीज के इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन वेरीफाई. यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एग्जांपल and explain the activity if it is asked in the question. Every time try to write the answer according to the mark distribution. If the question is define law of conservation of mass, write this definition, that is sufficient. If they are asking verify, then you can write
any of this activity. So I hope this law of conservation of mass is clear to everyone. Now you can take the final screenshot, can write in your fair notebook. If you still have any doubt, you can write in the comment section. So thank you, students.